Hello students, now next type of gas field detector is proportional counter. Proportional counter is a device which can easily detect even low energy particles. It works on the phenomena of gas multiplication that lead to large output pulse at the detector output. So which help to detect even low energy particles. So today's topic is proportional counter. प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में डिस्कस किया था और आपने देखा था कि आयनाइजेशन चैम्बर के केस में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की गई थी, दिस एक्सटर्नल वोल्टेज वाज लाई इन रीजन सेकेंड, as you can see in this graph, and this second region is ionization region, and the pulse height which is observed at the output end is because of primary ionization produced by incident charge particle in the gas chamber. Now today we will discuss about proportional counter, and proportional counter is a counter which works in region third, and this third region is proportional region. As you can see in this graph that it is between pulse height and voltage. As the voltage is increased beyond this ionization region, there is a sharp increase in the pulse height, and this is because of gas multiplication that occur inside proportional counter. So before discussing about the working of proportional counter, let's see the construction of proportional counter. देखिए, proportional counter consists of hollow metallic cylinder which is about 20 centimeter long and 2 centimeter in diameter. Along its axis, a fine wire is passed, which is tungsten wire of approximate radius of 0.1 millimeter, and this tungsten wire is well insulated from the walls of this conducting cylinder with the help of an insulator, and this metallic hollow cylinder, coaxial cylinder, is filled with the gases of mixture argon and methane. There is 90% argon and 10% methane is filled inside this gas chamber at atmospheric pressure. Now next, this coaxial wire is connected with the positive terminal of high tension battery, and the walls of this conducting cylinder is connected with the negative terminal of battery. Now see, when in this gas chamber an energetic charge particle enter, then this charge particle will lose its energy via inelastic collision with the gas molecules present inside this gas chamber, and this will lead to creation of ions and electrons. Now as from outside there is a high potential is applied across the electrodes. Here this metallic cylinder act as cathode because it's connected with the negative terminal of battery, and this coaxial wire which is connected with positive terminal of battery is act as anode. So whenever a energetic charge particle enter in this gaseous medium and create ion and electron, then these positive ions and electrons will drift towards their respective electrodes because of high value of electric field applied in between these electrodes. नाउ आप देखिए यहाँ जो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव आयन अलोंग
इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड की तरफ ड्रिफ्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में जो अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई की गई है ये इतनी सफिशेंट वोल्टेज है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट होंगे और इनके पाथ में अगर फर्दर गैसेस न्यूट्रल एटम्स आएंगे तो उन न्यूट्रल एटम्स को भी ये फर्दर आयनाइज कर देते हैं, जिसके थ्रू इस गैस चैम्बर में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे और जब ये एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे तो इनके पास भी सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी है कि इनके पाथ में भी अगर फर्दर न्यूट्रल गैस एटम्स आ रहे हैं तो ये उनको भी आयनाइज कर देंगे। तो इस तरह से गैस चैम्बर में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिसके थ्रू गैसेस में एक एवलांच सिस्टम सेट हो जाएगा और because of this avalanche system there is a large number of ions and electrons will produced inside this counter। और जब ये पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर पहुँचेंगे, जैसे कि आप देखिए कि पॉजिटिव आयंस कैथोड पर पहुँचेंगे और इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाएंगे और अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ फिर से कैथोड पर पहुंचकर इन पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इस तरह से एक सर्किट कंप्लीट होगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में लार्ज पल्स ऑब्जर्व होगी और ये पल्स फर्दर एम्पलीफायर के थ्रू पास की जाती है, जिसके थ्रू ये एम्पलीफायर इसे एम्पलीफाई किया जाता है और इसके बाद ये एम्पलीफाइड पल्स नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू पास की जाती है। देखिए, आफ्टर एम्पलीफायर देयर इज डिस्क्रिमिनेटर। नाउ दिस डिस्क्रिमिनेटर कट ऑफ ऑल लो वोल्टेज पल्सेस फ्रॉम द मेन पल्स corresponding to incident charged particle. So because of avalanche system which set inside this gas chamber, this avalanche system leads to creation of large number of ion pairs inside proportional counter, and because of this large number of ion and electron there is a large height pulse at the output with respect to आयनाइजेशन चैम्बर। आपने देखा था कि आयनाइजेशन चैम्बर के केस में जो आउटपुट में पल्स ऑब्जर्व हो रही थी वो पल्स किसकी वजह से थी? सिर्फ प्राइमरी आयनाइजेशन की वजह से, और जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की गई थी वो इतनी सफिशेंट नहीं थी कि गैस चैम्बर में एवलांच सिस्टम मींस गैस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए आयनाइजेशन चैम्बर के केस में जो हमें आउटपुट में पल्स ऑब्जर्व होती है वो पल्स सिर्फ प्राइमरी आयनाइजेशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से अगर लो एनर्जी पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर कर रहा है और पल्सेस बहुत स्मॉल हाइट की हैं तो वो आयनाइजेशन चैम्बर डिटेक्ट नहीं कर पाता। बट यही अगर हम प्रोपोर्शनल काउंटर का केस देखें तो यहाँ पर अब एक्सटर्नल वोल्टेज इतनी सफिशेंट अप्लाई की गई है कि जब प्राइमरी आयनाइजेशन में प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं तो वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपने पाथ में आने वाले सभी गैसीय जो और न्यूट्रल गैस एटम्स प्रेजेंट हैं चैम्बर में उनको भी फर्दर आयनाइज कर देते हैं और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी जब फर्दर एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और इसके थ्रू गैस चैम्बर में लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आप देखिए कि किस तरह से प्रोपोर्शनल काउंटर में एम्प्लीफिकेशन सेट की जाती है। सो पहले आप ये देखिए कि the electrons which are liberated by primary ionizing event get sufficient kinetic energy that when they
drift toward anode wire and collide with neutral gas atoms inside the chamber, they cause ionization of these neutral atoms. And the electrons so produced may cause further ionization. And this multiplication effect is often called as Townsend avalanche or Townsend cascade. So the total number of ion pairs which produced in single primary ion pair is called multiplication factor. As you can see, in case of ionization chamber, this multiplication factor is unity, but in case of proportional counter, this multiplication factor lie in range of 10 raised to power 2 to 10 raised to power 4. So because of this gas multiplication effect, we get large height pulse at the output of proportional counter. That leads to determine the energy of incident particle and also have good energy resolution, through which we can easily detect even low energy X-rays or low energy gamma rays. Now, to understand more quantitatively, let's see this mathematical terms. Before this, you see this diagram. आप देखिए इस डायग्राम में एवलैंच, डिस्क्रीट एवलैंचेस शो किए गए हैं. देखिए ये जो ब्लू पाथ शो किया हुआ है, दिस ब्लू पाथ इज़ द पाथ ऑफ ओरिजिनल आयनाइजिंग पार्टिकल. कि जब इंसिडेंट न्यूक्लियर पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर करेगा तो अलोंग देयर पाथ वो क्या कर रहा है, आयन और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स. अब जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल जो हमने फील्ड वोल्टेज अप्लाई की है, जिसके थ्रू गैस चैम्बर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ड्रिफ्ट होंगे और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव एनोड वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो जब ये ड्रिफ्ट होंगे एनोड वायर की तरफ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशिएंटली हाई है कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि ये अपने पाथ में आने वाले न्यूट्रल गैस एटम्स को भी फर्दर आयनाइज कर देंगे. और उस आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन्स फर्दर जब ड्रिफ्ट होंगे तो वो उस नेक्स्ट जनरेशन के फर्दर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसके थ्रू गैस चैम्बर में आप देख सकते हैं कि डिस्क्रीट एवलैंच सिस्टम सेट हो रहा है. और थ्रू दिस डिस्क्रीट एवलैंच सिस्टम देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेटेड इनसाइड द गैस चैम्बर. So as you can see here that in proportional counter, these proportional counter operate at slightly higher voltage selected such that discrete avalanches are generated. मीन्स जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की गई है वो इस तरह से सेट की है कि गैस चैम्बर में प्राइमरी आयनाइजेशन के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो तो ये डिस्क्रीट एवलैंचेस को जनरेट करें. So each ion pair produced in single avalanche so that an output pulse is generated which is proportional to the energy deposited by the radiation. What it means कि जब इंसिडेंट न्यूक्लियर चार्ज पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर करने के बाद प्राइमरी आयनाइजेशन करेंगे और ये प्राइमरी आयनाइजेशन के थ्रू फर्दर एवलैंच सेट होगा, तो कोरस्पॉन्डिंगली आउटपुट में हमें लार्ज हाइट पल्स ऑब्जर्व होगी. देखिए तो आउटपुट में जो हमें पल्स मिल रही है, दिस आउटपुट पल्स इज़ प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस गैस चैम्बर. और ये आयन पेयर्स, ये डिस्क्रीट एवलैंचेस कितने सेट होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी आयनाइजेशन में कितने आयन पेयर्स प्रोड्यूस हुए होंगे. मीन्स पल्स हाइट इज़ proportional to the primary ionization and this primary ionization is proportional to the energy of incident charge particle. So we can say the pulse height which is generated inside this proportional counter is proportional to the energy deposited by the radiation inside the counter.
आई रिपीट कि आउटपुट में जो हमें पल्स ऑब्जर्व हो रही है, इस पल्स की हाइट प्राइमरी आयनाइजेशन के प्रोपोर्शनल होगी, और कितनी प्राइमरी आयनाइजेशन होगी, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट particle. It means the pulse height is proportional to the energy deposited by radiation inside gas chamber. So इस तरह से पल्स को ऑब्जर्व करके हम इंसिडेंट न्यूक्लियर पार्टिकल की एनर्जी मेज़र कर सकते हैं. इसी के साथ प्रोपोर्शनल काउंटर का जो काउंटिंग रेट है दैट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन द आयनाइजेशन चैम्बर. क्लियर. इसके साथ आप इस फिगर में एक इंडिविजुअल एंड एवलांच सिस्टम भी देख सकते हैं कि किस तरह से. आप देखिए यहाँ जो येलो डॉट शो किया हुआ है, दिस इज़ द ओरिजिनल आयनाइजिंग इवेंट. मींस जब एनर्जेटिक न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर करेगा और आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ ये येलो डॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट हुआ है. अब ये एक इलेक्ट्रॉन इन एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होगा, क्योंकि एनोड वायर क्या है, पॉजिटिव है. देखिए यहाँ से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की हुई है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, तो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज इस तरह सेट की हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशेंट होगा जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा कि ये अपने पाथ में आने वाले एटम्स को फर्दर आयनाइज कर दे. तो आप देखिए यहाँ से जो ब्लू पाथ शो किया हुआ है, दिस इज़ द पाथ ऑफ दिस आयनाइजिंग पार्ट इलेक्ट्रॉन, कि जिसके थ्रू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं. और जो रेड कलर से पाथ शो किया हुआ है, दिस इज़ द पाथ ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द न्यूट्रल गैस एटम्स. सो आप यहाँ से देखिए कि फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन जब आगे मूव कर रहा है, तो इसके थ्रू देखिए नेक्स्ट न्यूट्रल गैस एटम के साथ इंटरेक्ट करने के बाद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इसका खुद का पाथ है. इसी तरह जब ये दोनों भी आगे ड्रिफ्ट होंगे, तो ये जो सेकेंडरी प्रोड्यूस हुआ है ये भी फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, और ये नेक्स्ट सेकेंडरी का पाथ है, और ये इसका खुद का पाथ होगा. इसी तरह आप यहाँ से देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी सेकेंडरी प्रोड्यूस करेगा, और ये इसका खुद का पाथ होगा. इसी तरह अब ये चार भी आगे नेक्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे. तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन से. इसके बाद दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू, देखिए यहाँ से क्लियरली कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू टू इलेक्ट्रॉन्स, देन दीज टू लीड्स टू 4, देन दीज 4 लीड्स टू 8. नाउ अगर इसके बाद की अगर हम देखें, देन दीज 8 विल लीड टू 16. तो इस तरह से एनोड वायर तक पहुंचने तक यहाँ लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेट हो जाएंगे. और जब ये प्रोड्यूस्ड आयन पेयर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचेंगे, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, लार्ज हाइट पल्स मिलेगी. और जो पल्स की हाइट है, दिस पल्स हाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी आयनाइजेशन. जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की गई है वो इस तरह से एडजस्ट की गई है कि जो आउटपुट में हमें पल्स ऑब्जर्व हो, उस पल्स की हाइट प्राइमरी आयनाइजेशन के प्रोपोर्शनल हो. मीन्स पल्स हाइट इंसिडेंट न्यूक्लियर पार्टिकल के एनर्जी के प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही प्रोपोर्शन में प्राइमरी आयनाइजेशन इवेंट होंगे, और जितने प्राइमरी आयनाइजेशन इवेंट होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही डिस्क्रीट एवलांचेस सेट होंगे. क्लियर. तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा प्राइमरी इवेंट होंगे कॉरस्पॉन्डिंगली उतने ही डिस्क्रीट फर्दर एवलांच सिस्टम सेट होंगे इनसाइड द गैस चैम्बर. सो इस तरह से प्रोपोर्शनल काउंटर वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड दिस गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, लेट्स सी सम मोर क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स. फर्स्ट, it's considered that if one single electron give rise to n secondary electrons,
मीन्स कि जब न्यूक्लियर पार्टिकल, एनर्जेटिक न्यूक्लियर पार्टिकल इस गैस चैम्बर में एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद अगर ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है और ये सिंगल प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जब फर्दर ड्रिफ्ट हो रहा है नोड वायर की तरफ और ये n सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब ये n सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की क्या प्रोबेबिलिटी है आप देखिए। जब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स गैस चैम्बर में फर्दर मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, या तो गैस मोलिक्यूल्स को आयनाइज कर सकते हैं या एक्साइट कर सकते हैं। तो अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन न्यूट्रल एटम्स के साथ होने के बाद गैसियस एटम्स क्या हैं, एक्साइटेड स्टेट में हैं, तो जब वो गैसियस एटम डी एक्साइट होंगे तो क्या करेंगे, फोटोन का एमिशन करेंगे। अब ये जो फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये फोटोन इतनी सफिशिएंट एनर्जी के हैं कि जब ये फोटोन फर्दर गैस चैम्बर में मूव करेंगे तो ये फोटोन्स न्यूट्रल एटम्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी फर्दर जब मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनकी भी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्दर फोटोन्स एमिट करें और ये फोटोन्स फर्दर फिर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। आई विल रिपीट दिस डायग्राम। देखिए आप यहाँ से कि सपोज अगर न्यूक्लियर पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि सपोज वो n सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। अब इन n सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की p प्रोबेबिलिटी है कि ये क्या करे, एटम्स के साथ जो इंटरेक्शन हो रही है उसके थ्रू फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करें। मींस जब गैसियस एटम को एक्साइट होंगे इंटरेक्शन के बाद, तो वो डी एक्साइट होने के बाद फोटोन का एमिशन करेंगे और ये फोटोन फर्दर इंटरेक्ट होने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इन n सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की p प्रोबेबिलिटी है कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करें। तो अब कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, दिस विल बी Np। क्लियर। एक से कितने प्रोड्यूस हुए, n सेकेंडरी। अब इन n सेकेंडरी की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करें, दिस इज Np। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब टोटल, n सेकेंडरी के थ्रू Np फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप देखिए अब इन n स्क्वायर p जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी भी प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्दर Np फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करें। तो इसी तरह आप देखिए कि नेक्स्ट जनरेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट विल बी n से कितने हुए, Np मीन्स n जब n से एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से n बन रहे हैं और अब ये n स्क्वायर p फर्दर क्या करेंगे, n स्क्वायर p फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के करेंगे, तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन सेट हो गई। क्लियर। तो आप देखिए कि अगर हम क्या निकालें, गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इवेलुएट करें, तो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसके इक्वल है, गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बताएगा, गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल टेल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द गैस चैम्बर व्हेन न्यूक्लियर पार्टिकल विल इंटरेक्ट। तो कितना इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोड्यूस होंगे, और ये सेकेंडरी किस पे डिपेंड करेंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखिए कि ये m गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसके इक्वल होगा, दिस गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू, आई विल रिपीट कि एक से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक से n सेकेंडरी, और इन n सेकेंडरी की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करें, दिस इज Np, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग n के। अब ये फर्दर कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, n स्क्वायर p फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे Np। तो इस तरह से आप सीरीज लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नाउ m is equals to n plus n square p plus n cube p square plus and so on. So this will be the multiplication factor. देखिए अगर यहाँ से n कॉमन ले लिया जाए तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस
एन पी प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? सो आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास अब क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू एन 1 प्लस एन पी प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? अब देखिए अगर इसे सीरीज़ में लिखने के लिए हम यहाँ कंसीडर करें, सपोज एन पी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो आप देखिए एन पी के कोरस्पॉन्डिंग क्या प्रोड्यूस हो रही है, फर्दर सीरीज सेट हो रही है। प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में दिस एन पी इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब है, देखिए दिस एन पी इज लेस देन 1। अगर हम एन पी को x के इक्वल रखें तो ये सीरीज़ क्या बन जाएगी, दिस सीरीज़ देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू एन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ मिल रही है, दिस सीरीज़ इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में जो हम एन पी चूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू, ये सीरीज़ कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी किसी वैल्यू पे। देखिए आप, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो एक्स स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, एक्स क्यूब उससे भी छोटा होगा, तो इट मीन्स कि ये सीरीज़ किसी वैल्यू पर जाके कन्वर्ज कर जाएगी। और इसी तरह ही एक्सटर्नल वोल्टेज सेट की हुई है कि जिसके थ्रू गैसियस चैम्बर में एक लिमिट में मल्टीप्लिकेशन हो आयन पेयर की, जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ बन रही है, दिस सीरीज़ विल कन्वर्ज। तो अब यहाँ से देखिए ये सीरीज़ क्या है, दिस सीरीज़ इज़ ए ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम लिख सकते हैं। तो अगर इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम लिखें तो ये सम किसके इक्वल होगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू एन इंटू एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? जहाँ पर x विच इज़ इक्वल्स टू एन पी इज़ लेस देन 1। तो अगर इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम लिखें तो ये सम किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर n इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म इज 1 ओवर 1 माइनस x। क्लियर? दिस इज द सम ऑफ दिस जीपी ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, n को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन n ओवर 1 माइनस x क्या है, एन पी। क्लियर? तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसके इक्वल आ गया, n ओवर में 1 माइनस एन पी। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, m इज इक्वल्स टू n ओवर 1 माइनस एन पी। और आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में इस एन पी की वैल्यू लेस देन 1 है। नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टडी करेंगे वो जीएम काउंटर के बारे में स्टडी करेंगे, और आप वहाँ देखेंगे कि जीएम काउंटर के केस में ये एन पी मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एन पी इस तरह सेट किया जाता है दैट दिस इज़ ग्रेटर देन 1। क्लियर? और इस ये हम क्या स्टडी कर रहे हैं अभी, प्रोपोर्शनल काउंटर। और प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में एन पी की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 1 एंड देयर इज़ अ लिमिट सेट इनसाइड द गैस चैम्बर की जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है आयन पेयर की, वो एक लिमिट में सेट की हुई है। सो इससे हम देख सकते हैं कि जब ये यहाँ कि ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी आयनाइजेशन कितनी होगी, और प्राइमरी आयनाइजेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि आउटपुट में कितनी हमें पल्स हाइट ऑब्जर्व हो रही है कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी आयनाइजेशन से डिस्क्रीट एवलेंचेस सेट हो रहे हैं और कोरस्पॉन्डिंग पल्स हाइट है। और ये पल्स हाइट क्या बता रही है, एनर्जी डिपॉजिटेड बाय इंसिडेंट charge particle inside the gas chamber. So this is about the working of this proportional counter.
आप नेक्स्ट देखिए इसी के साथ कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेट किया जाता है इनसाइड द गैस चैम्बर बाय अप्लाइंग सुटेबल वोल्टेज। क्लियर। तो आप इसे समझने के लिए ये डायग्राम देखिए अगर प्रोपोर्शनल काउंटर का जो कोएक्सियल सिलेंडर है अगर उसे फ्रंट साइड से देखा जाए, देखिए किस तरफ से, सॉरी, अगर इस ट्यूब को आप देखिए इस फ्रंट साइड से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ से जो ये बिग जो सर्कल है ये क्या शो कर रहा है, सिलेंडर, और इसके इनसाइड दिस कोएक्सियल इज टंगस्टन वायर। अब यहाँ पर जो बी है, दिस बी इज़ द रेडियस ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर एंड दिस ए इज़ द रेडियस ऑफ टंगस्टन वायर। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर फ्रॉम सेंटर ऑफ टंगस्टन वायर अगर हम मूव करें तो अलोंग द रेडियल डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल होगी। आई विल रिपीट दिस कि आप देखिए कि अगर इस ट्यूब को फ्रंट साइड से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये सर्कल है दिस शोज़ द कोएक्सियल सिलेंडर एंड दिस इज़ द टंगस्टन वायर। क्लियर। और यहाँ क्या है, बी रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड ए इज़ द रेडियस ऑफ टंगस्टन वायर। क्लियर। इफ़ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एनोड वायर, तो ये रेडियल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द अपरेटस। क्लियर। एक चीज़ आप यहाँ से नोट कीजिए कि कितनी प्राइमरी आयनाइजेशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन होगी, मींस कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द अपरेटस। अब प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में जो ज्योमेट्री है दैट इज़ सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। तो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री के कोरस्पॉन्डिंग अगर आर डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा। आप देखिए आर रेडियल डिस्टेंस मींस अगर ये नोड वायर है तो इससे कितने डिस्टेंस, सपोज ये आर डिस्टेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री के केस में दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर एट रेडियल डिस्टेंस from anode wire is equals to V naught over R log natural log of B over में A। क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे R डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनोड वायर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे इसे लिखते हैं कि एट रेडियल डिस्टेंस R, देखिए आप, एट रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम एनोड वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वी नॉट ओवर में आर नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर में ए के इक्वल होता है, जहाँ बी क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड ए इज़ द रेडियस ऑफ एनोड वायर। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर कि अगर हम यहाँ वैल्यूज़ कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, और B अगर हम कंसीडर करें लेट B इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। क्लियर। और एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई की गई है इसे मैक्सिमम सपोज 10,000 वोल्ट कंसीडर करें तो R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। क्लियर। देखिए आप यहाँ से कि अगर ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁴ वोल्ट
पर सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो ये बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल काउंटर में डिस्क्रीट एवलांचेस सेट हो जाते हैं। इसी के साथ आप एक बात और नोट कीजिए कि जैसे जैसे सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री में आर डिस्टेंस एनोड वायर से इंक्रीज हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखिए आप इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं इस डायग्राम से, कि जैसे कि हमने यहाँ शो किया, देखिए इस डायग्राम में क्या शो किया हुआ है, ये सेंटर में एनोड वायर है। क्लियर। जैसे जैसे एनोड वायर से डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजली स्पेस्ड है, बट जैसे जैसे दूर जाएंगे उनके बीच की स्पेसिंग कम होती जा रही है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रेडियल सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री में जैसे जैसे आप एनोड वायर से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर एनोड वायर से, यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे एनोड वायर से दूर जाएंगे डिस्क्रीट एवलांच होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। बट आप यहाँ से देखिए कि ये प्राइमरी आयनाइजिंग पार्टिकल का शो किया हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब ये एक पर्टिकुलर बाउंड्री में एंटर हो रहा है और नियर एनोड वायर यहाँ डिस्क्रीट एवलांचेस सेट हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह सेट किया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड वायर की तरफ अप्रोच करें तो एक पर्टिकुलर रीजन में एंटर होने के बाद गैस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बाउंड्री ऑफ एवलांच रीजन। क्लियर। देखिए एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, देखिए इस एक्स एक्सिस पर आर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनोड वायर, यहाँ ये एनोड वायर से आर डिस्टेंस शो किया हुआ है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, बट देयर इज अ लिमिट हेयर विच इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन रीजन, कि जब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर करेगा देन देयर विल बी एवलांच सेट इनसाइड द गैस। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन रीजन, एंड फॉर गैस मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्स लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर। इसी के साथ आप एक चीज़ देखिए कि जब प्रोपोर्शनल काउंटर की हमने कंस्ट्रक्शन स्टडी की तो आपने देखा कि किस तरह से गैस का मिक्सचर लिया जाता है इन proportional counter is it consists of a 90% argon and 10% polyatomic gas methane at 1 atmospheric pressure, कि हम 90% आर्गन फिल करते हैं और 10% मीथेन फिल करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम 100% नोबल गैस क्यों फिल नहीं करते? तो आप यहाँ से देखिए कि ऐसा क्यों किया जाता है कि आर्गन गैस के साथ 10% मीथेन भी फिल की जाती है। आप देखिए कि यहाँ फील्ड है, फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। सपोज इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल इस तरह से, सपोज इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल इस चैम्बर में एंटर करे और एंटर होने के बाद आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट होंगे एनोड वायर की तरफ तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एवलांच करेंगे, तो इसके साथ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग आयंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ये आयंस कैथोड वायर की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं और कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, और जब ये कैथोड पर पहुंचेंगे, देखिए आप कि जब ये पॉजिटिव आयन कैथोड पर पहुंचेंगे तो कैथोड पर पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके न्यूट्रल हो जाते हैं। क्लियर कि सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके अलाउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आएगा तो ये एटम क्या हो जाए, आयन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल एटम बन जाएगा। तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में रिलीज़ होगी, कि जब आयन कैथोड पर पहुंचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फोटोन का एमिशन करेंगे, और ये फोटोन जब फर्दर गैस चैम्बर में मूव करेंगे
करेंगे तो ये फर्दर क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड की तरफ ड्रिफ्ट होंगे तो ये फर्दर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आप ये देखिए कि पॉजिटिव आयन के न्यूट्रलाइज होने से जो फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है, ये फोटोन फर्दर एवलांच सिस्टम को सेट कर रहा है इनसाइड गैस चैम्बर। और ये एवलांच सिस्टम क्या है, अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि ये इंसिडेंट पार्टिकल के प्राइमरी आयनाइजेशन से प्रोड्यूस आयन पेयर जो प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से आउटपुट में पल्स नहीं मिल रही है। किसकी वजह से अनडिज़ायरेबल पल्स मिलेगी, आप देखिए फिर से कि जब पॉजिटिव आयन कैथोड पर पहुंचकर न्यूट्रलाइज होंगे तो ये फोटोन का एमिशन करेंगे। ये फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर से आउटपुट में अनडिज़ायरेबल पल्स मिलेगी। इसे अवॉइड करने के लिए गैस चैम्बर में पॉली एटॉमिक गैस को मिक्स किया जाता है एक सुटेबल क्वांटिटी में। तो ये पॉली एटॉमिक गैस क्या करती है कि जो हमने मीथेन का मिक्सचर ऐड किया, मीथेन ऐड किया जो इसमें, जब ये आयन कैथोड पर पहुंच कर न्यूट्रलाइज होंगे और फोटोन का एमिशन करेंगे तो इनसाइड प्रेजेंट जो मीथेन है, ये मीथेन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है दैट इज़ इन वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट डजंट लीड टू एनी नेक्स्ट जनरेशन एवलांच, और इसी तरह हमें आउटपुट में कोई अनडिज़ायरेबल पल्स ऑब्जर्व नहीं होगी। क्लियर? सो इस तरह से हम इस अनडिज़ायरेबल एवलांच फिनोमिना को स्टॉप कर सकते हैं बाय एडिंग मीथेन इनसाइड दिस गैस चैम्बर। सो दैट्स द रीज़न कि जो गैस चैम्बर है उसमें 100% नोबल गैस फिल नहीं की जाती। क्लियर? सो दिस इज़ अबाउट द प्रोपोर्शनल काउंटर। इसी के साथ आप ये देखिए कि प्रोपोर्शनल काउंटर की जो मेन डिसएडवांटेज है, वो मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर गैस मल्टीप्लिकेशन करनी है इनसाइड गैस चैम्बर, मींस अगर एवलांच सिस्टम सेट करना है तो एवलांच सिस्टम क्या है, दिस इज़ अ बिल्ट इन एम्प्लीफिकेशन फिनोमिना, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में लार्ज हाइट पल्स ऑब्जर्व होती है। तो इस बिल्ट इन एम्प्लीफिकेशन को सेट करने के लिए जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है, दिस एक्सटर्नल वोल्टेज मस्ट बी मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट विद इन द नैरो लिमिट that lead to high electric field across these electrodes। तो यही इसकी मेन डिसएडवांटेज है, एंड दिस इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव कि इन प्रोपोर्शनल काउंटर वी हैव टू मेंटेन कॉन्स्टेंट वोल्टेज विद इन अ नैरो लिमिट, जिसके थ्रू गैस चैम्बर में एवलांच सिस्टम सेट किया जा सके। सो दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोपोर्शनल काउंटर। क्लियर? इसी के साथ आप एडवांटेजेस देखिए कि एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, कि थ्रू दिस गैस मल्टीप्लिकेशन वी कैन ईजिली डिटेक्ट लो एनर्जी एक्स रेज एंड ऑल्सो वी कैन डिटेक्ट लो एनर्जी गामा रेज। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसका काउंटिंग रेट इन कंपैरिजन विद आयनाइजेशन चैम्बर मच फास्टर है। और थ्रू प्रोपोर्शनल काउंटर जो प्रोपोर्शनल काउंटर के थ्रू हम लो एनर्जी एक्स रेज की एनर्जी को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मींस इसकी जो एनर्जी रेजोल्यूशन है एट लो एनर्जी वो भी एक्सीलेंट है। एनर्जी रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, आप देखिए कि सपोज आप यहाँ से देखिए रेजोल्यूशन, यहाँ रेजोल्यूशन क्या शो की हुई है, दिस इज़ इक्वल्स टू दिस। तो अगर इस पल्स के बीच में कोई छोटी हाइट की पल्स आएगी तो ये डिटेक्टर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट प्रोपोर्शनल काउंटर के केस में आप देखिए ये ईजिली एक पर्टिकुलर इसकी क्या है हाई रेजोल्यूशन है, जिसके थ्रू ये देखिए आप 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पल्स को भी ऑब्जर्व कर पा रहा है और 22.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, मींस इट हैज़ ए गुड रेजोल्यूशन, एनर्जी रेजोल्यूशन।
सो दीज आर सम मेन एडवांटेजेस। और इसी के साथ प्रोपोर्शनल काउंटर की एडवांटेज है कि ये न्यूट्रॉन को भी इजीली डिटेक्ट कर सकता है। तो न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए गैस चैम्बर में बोरोन ट्राईफ्लोराइड ऐड किया जाता है। तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड ऐड करने से क्या होगा कि जब बोरोन के साथ न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो ये फर्दर अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करते हैं, और इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करके हम न्यूट्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वे proportional counter can also detect neutrons. So these are some uses or importance applications of this proportional counter. So this is all about the proportional counter. Thank you, students.